Hello my dear students, a very good morning to everyone. So students, we were dealing with chapter 4, the enemy, and two parts of this chapter we have already discussed in two parts of the video. So today I am taking third video of chapter the enemy. As it is a lengthy chapter, we'll try to finish it in the third video. So up to now what we have studied, how a Japanese doctor, Dr. Sadao Hoki, and his wife Hena, who has spent 8 years in America. And now what is the situation that America and Japan are at loggerheads as World War is going on. So the situation is that one day their house is near the seashore at the Japanese coast, and one day they found one American prisoner there who is injured, who is a prisoner of war. It means that somehow that soldier has been escaped from Japanese army and he is badly wounded. How Dr. Sadao took that man at the house, treated him, and how Hena and Dr. Sadao both served the man as the servants denied to cooperate with them. So this is the chapter. So we left from page number 37 at the first three paragraph we have discussed of this chapter. So please continue from there. Now student, what is the scene? That the operation is successful, surgery is successful, the white man has opened his eyes and he was totally shocked that where he is, where he now he is thinking that I'm at the Japanese Japanese house, and what they will do to me. So he is little afraid and he asked many questions. He asked this question straightly to Dr. Sadao, but Dr. Sadao didn't reply anything. So that boy is very young, perhaps of 17 or 18 years. So let's start from here. One day what happened after completion of surgery, new problem began in their house. And what was the problem? That all the servant all together revolted against their uh, pair who has hired them. So pair Dr. Sadao and Hena. So Hena is complaining Dr. Sadao that they are thinking that we don't love our country as we spent 8 years in America, so we are more Americans in our approach. So Dr. Sadao said, no, this is not true. So please come at the top, third paragraph. Neither seemed able to say more, and somehow household dragged on. This paragraph we have taken, I hope you have got this. First, third, it is a conversation between Hena and Dr. Sadao. So neither seemed able to say more and somehow the household dragged on. So यहाँ पे बोल रहे हैं कि दोनों के दोनों डॉक्टर सदा और हैना के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, और घर का जो काम था, हाउस होल्ड जो वर्क था, वो किसी तरीके से चल रहा था, बस चल रहा था इन द सेंस कि ज़्यादा खुश नहीं थे सर्वेंट्स, और जो ऑनर है वो भी काफ़ी डरा हुआ है, डरे हुए हैं डॉक्टर सदा और हैना कि कहीं ये सर्वेंट जाके कंप्लेन ना कर दे जापानीज़ आर्मी को. मैं बार बार ये बोल रही हूँ, अगर आपने फर्स्ट 2 पार्ट्स देखे होंगे तभी आप ये थर्ड पार्ट समझ पाएंगे. The servants grew more watchful, their courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. तो यही था कि कर्टेसी, जैसे वो काम कर रहे थे, अपनी ऑनेस्टी के साथ वो काम कर रहे हैं, बट एक हेट्रेड उनकी आइज़ में नज़र आ रही थी. हेट्रेड नहीं कह सकते, गुस्सा था कि उनके जो ऑनर ने जो भी किया है, एक एनिमी सोल्जर को जो बचाया है, वो उन्होंने ठीक नहीं किया. अब देखो कॉन्वर्सेशन क्या है. अब हमारा सीन ख़त्म हो चुका है, उसकी सर्जरी हो चुकी है उस सोल्जर की, वो सिर्फ रिकवर कर रहा है और वो रिकवर भी बहुत जल्दी कर जाएगा. अब नेक्स्ट डॉक्टर सदाव के सामने चैलेंज है कि अब उसका करें तो करें क्या. उसको घर में ज़्यादा दिन रख नहीं सकते. एज द डॉक्टर उसकी जान हमने बचा ली है, अब आगे क्या करना है. इट इज़ क्लियर वॉट आर मास्टर ऑट टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग. अब बेटा एक सुबह की बात है, हमारे जो ओल्ड गार्डनर है डॉक्टर सदाव के फादर के टाइम में, और काफ़ी सुपरस्टिशियस है. क्यों सुपरस्टिशियस मैं इनको कह रही हूँ, क्योंकि आपको शायद याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने एक अपनी अलग ही फ़िलॉसफी लगाई थी कि कैसे उसको गन ने अपना काम किया, गन ने क्या किया, उसको शूट किया, फिर सी ने अपना काम किया कि उसने अपनी रॉक से उसको और ज़्यादा इंजर्ड किया. तो ये सब क्या है, भगवान उससे बदला ले रहा है, ये सब थियोरी उन्होंने दी थी अपनी. सो एक दिन सुबह वो काम कर रहे थे और वो क्या बोलते हैं कि साफ सी बात है, सब कुछ क्लियर है, हमारे मास्टर को जो करना चाहिए, इसमें कन्फ्यूज़न क्या है. ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मोस. अब कहते हैं कि पूरी लाइफ उसने फ्लावर्स के साथ काम किया था. काफ़ी बूढ़े हैं वो, काफ़ी एक्सपर्ट हैं अपने काम में, और पूरी लाइफ उन्होंने अपने फ्लावर्स के साथ काम किया. और वो मॉस हम यहाँ पे बोल सकते हैं जब हमें बहुत अच्छी वेलवेट ग्रास देखने को मिलती है.
दूर दूर तक अगर आप देखो सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी नज़र आए, तो वो उसमें स्पेशलिस्ट थे. For Sadao's father, he had made one of the finest most gardens in Japan, sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. अब देखिए यहाँ पे क्या है, मार्ड का मतलब होता है ruined, खराब कर देना. फाइन. फॉर सदाओ's father, he had made one of the finest most gardens in Japan. और सदाओ के फादर के लिए उन्होंने जापान का सबसे सुंदर गार्डन बनाया था. स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट्स कॉन्स्टेंटली सो दैट नॉट अ लीफ और अ पाइन नीडल मार द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस. और वो उस आर्टिफिशियल ग्रास, उस ग्रास की जो वो लेयर बनाते थे, उसको इतने अच्छे से स्वीप करते थे, इतने अच्छे से क्लीन करते थे कि ना कोई पत्ता, ना कोई, मैंने बताया ना पाइन ट्रीज बहुत थे उनके घर के आसपास, कोई पाइन ट्री का कोई पत्ता कुछ भी उस पर गिर के उसके सरफेस को खराब ना कर दे. तो इसमें उनकी स्पेशलिटी बताई गई है कि कितना वो अपने काम में परफेक्ट थे. माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल दैट ही ought टू डू. कहते हैं मेरे ओल्ड मास्टर के बेटे को बहुत अच्छे से पता है कि उनको क्या करना चाहिए. ओल्ड मास्टर कौन? डॉक्टर सदाव के फादर. ही नाउ सैड पिंचिंग अ बड फ्रॉम अ बुश एंड ही स्पोक. और वो क्या कर रहे थे? अपना काम कर रहे थे. ओल्ड गार्डनर जो थे, जैसे फूलों का क्लीन, जैसे गार्डनर का अपना काम होता है, पेड़ पौधों का ध्यान रखना, वो सब काम करते करते वो बोल रहे थे कि भाई मेरे मास्टर को सब पता है कि उसे क्या करना चाहिए. When the man was so near death, why did he not let him bleed? जब वो आदमी बिल्कुल मरने की कगार पे था. देखो, जब सी कोस्ट पे वो अमेरिकन प्रिजनर उसे मिला था, तो वो कोई बहुत अच्छी कंडीशन में तो था नहीं. अगर डॉक्टर सदाव उस पर ध्यान नहीं देते तो वो मर चुका होता अब तक. कहते जब वो इतने पास था अपनी डेथ के, तो उसको क्यों नहीं मरने दिया, उसकी ब्लीडिंग को क्यों रोका. दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ. यहाँ पे वो अपने ऑक्सीमोरन हम यहाँ कह सकते हैं बेटा, वहाँ पे डॉक्टर सदाव की तारीफ भी कर रहा है और उसके ऊपर कमेंट भी कर रहा है. कहता है ये जो यंग मास्टर है ना, ये अपनी स्किल क्या, वो एक अच्छे सर्जन है, उस पर इतना प्राउड फील करते हैं. अगर ये किसी की जान बचा सकता है तो मतलब किसी की भी बचाएगा, यानी कि एनिमी की भी बचाएगा. द कुक सेड कंटेम्प्टियसली. She split a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let it blood flow into the roots of Wisteria vine. Wisteria vine भी एक प्लांट का नाम होता है बेटा, आप इसको गूगल सर्च करके देख सकते हो. अब एक ब्लड के बारे में बताया है कि कोई बर्ड उसने ली है, उसको उसकी गर्दन को काट के उसके ब्लड को वो उसमें डाल रहा है. किसमें? इन प्लांट्स में. अब आप कहोगे मैम ये ब्लड का क्या सीन है, वो आपको पता चलेगा. देखो, ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट. क्योंकि जो ब्लड है वो बेस्ट फर्टिलाइज़र, ये जापानीज़ लोगों की अपनी थियोरी है भाई, जो एग्रीकल्चर में ज़्यादा स्टडी करते हैं उनको ज़्यादा पता होगा. तो ब्लड जो है वो बेस्ट फर्टिलाइज़र है, और वो अपने प्लांट्स में फर्टिलाइज़र डाल रहा है उस बर्ड का ब्लड डाल के. और ये जो ओल्ड गार्डनर है ये एक भी बूंद वेस्ट नहीं करना चाहता. तो अब ज़रा सोचो, अगर उसके हाथ में वो एनिमी को छोड़ दिया जाए, उस गार्डनर को दे दिया जाए, तो मेरे ख्याल से वो उस पूरे इंसान की एक एक बूंद को अपने प्लांट्स में डाल के एज अ फर्टिलाइज़र का काम करवा देगा. इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थिंक, यूमी सैड सैडली. अब गार्डनर की बात तो आपको पता चल गई. अब यूमी क्या कह रही है? यूमी समझा रही है बाकी सर्वेंट्स को कि बच्चों की क्या गलती है, हमें बच्चों के बारे में तो एटलीस्ट सोचना चाहिए. वट विल बी देयर फेट इफ़ देयर फादर इज़ कंडेम्ड एज अ ट्रेटर. और कहते हैं कि अगर उनके फादर को देशद्रोह या ट्रेटर का एक टैग मिल जाता है, तो उनका क्या फ्यूचर होगा, क्या उनका फेट होगा, उनका फॉर्च्यून क्या होगा, वो तो पूरी लाइफ सर उठा के नहीं जी पाएंगे. तो ये सब डिस्कशंस हैं बेटा जो घर में चल रही हैं. They didn't try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby. अब ये सीन देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बातें कर रहे होते हैं और कोई छुप के हमारी बातें सुन रहा है, और हमें पता है कि कोई खड़ा है वहाँ पे, फिर भी हम वो बातें उसको सुनाने के लिए कर रहे हैं कि उसके कानों तक जाए. तो वो सारे इसी तरीके से बात कर रहे थे. हैना जो थी वो फ्लावर्स को अरेंज कर रही थी वरेंदा में, और वो सारे ये बातें कर रहे थे. एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पज़ दैट शी माइट हियर. और हैना को भी पता था कि ये मुझे सुनाने के लिए ही सारी बातें कर रहे हैं. दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बींग. कहीं ना कहीं उसे लगता था कि ये भी अपनी जगह ठीक ही है. बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हर सेल्फ कुडंट अंडरस्टैंड. जैसा कि मैंने आपको बताया, उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि वो इस एनिमी की हेल्प कर क्यों रहे हैं, ऐसा क्या है.
इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, ऐसा नहीं है कि वो प्रिजनर को बहुत पसंद करते हैं, सेंटिमेंटल लाइकिंग है. शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन येस्टरडे when he had said in his impulsive way. और कहती है, हैना खुद से बात कर रही है कि हम मेरे को तो वो कल भी नहीं पसंद आया था जब वो मेरे को बोल रहा था. एनीवे लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम. यानी कि जब हैना उसको खाना खिलाने के लिए जाती है बच्चों, और वो हैना से कहता है, वेल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम टॉम है. शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंट बो. ये जैपनीज़ लोग, आपको पता है कि वेलकम के लिए, थैंक यू के लिए ना अपने आप को बॉ करके वो शो करते हैं. शी सो हर्ट इन हिज आइज बट शी डिडंट विश टू अस्योज इट. उसे उसकी आंखों में थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा हर्ट नज़र आ रहा था, लेकिन वो उसको दूर करने की कोशिश नहीं करती. देखो बेटा, इससे ये पता चलता है कि वो उसको पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि अगर उसको थोड़ा सा भी होता तो वो उसको कंसोल करती, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम सेफ हो या कुछ भी. लेकिन है ना, ऐसा कुछ नहीं करती, वो बस अपना चुपचाप एक ड्यूटी सी पूरी कर रही है. इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस. क्यों? क्योंकि वो जो टॉम, यहाँ पे हमें अमेरिकन प्रिजनर का नाम पता चल चुका है, उसका नाम टॉम है, वो उस घर के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एज फॉर सदाव, एवरी डे ही एग्जामिन द वुंड केयरफुली. द लास्ट स्टिच हैज़ बीन पुल्ड out of this morning, and the young man would in fortnight be nearly as well as ever. आप कहते हैं भाई, एग्जाम दिन निकलते गए बेटा, एवरी डे वो एग्जामिन करता गया डॉक्टर सदाव, और अब वो टाइम आ गया जब उसका लास्ट स्टिच जो था वो भी रिमूव होने वाला था. और इन अ फोर्टनाइट यानी कि 14 डेज़, और 14 डेज़ में वो जो अमेरिकन प्रिजनर है वो ऐसे ठीक हो जाएगा जैसे कभी मानो उसको हुआ ही ना हो कुछ. Sadav went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. अब कहानी में ट्विस्ट है बेटा, अब न्यू एंट्री यहाँ पे आने वाली है. अब डॉक्टर सदाव, जब उसका लास्ट स्टिच भी निकल चुका है, सब ठीक है, वो 14-15 डेज़ में ओके भी होने वाला है, अब वो जाके चीफ ऑफ पुलिस को एक लेटर लिख रहा है जिसमें वो सब कुछ बताएगा कि कैसे कैसे उसके घर में एक प्रिजनर ऑफ वॉर है. ऑन द 21st डे ऑफ फेबररी, देखो बेटा यहाँ पे बता दिया, 21 फरवरी डेट थी जिस दिन वो अमेरिकन प्रिजनर उसके घर के बाहर उसे मिला था. एन एस्केप्ड प्रिजनर वॉज वॉश्ड अप ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. So far he typed, and when he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. अब बेटा कुछ होता है ना, कभी कभी हम करते करते भी कोई काम रुक जाते हैं. आई डोंट नो डॉक्टर सदाव के मन में क्या आया. उन्होंने पूरा लेटर लिखा कि 21 फरवरी को एक प्रिजनर ऑफ वॉर मेरे घर के बाहर मुझे मिला, और वो चीफ ऑफ पुलिस को भेजने वाला था. लेकिन वो क्या करता है, उसको अनफिनिश्ड मतलब आधा ही टाइप करके अपने स्टडी टेबल के सीक्रेट ड्रॉर में उसको रख देता है. ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, और जब उसने लेटर लिखा उसके 7 दिन और बीत गए. 2 थिंग्स हैपन्ड. घर में 2 ट्विस्ट आए, 2 प्रॉब्लम्स आई एक साथ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई. इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट ऑल टुगेदर. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई कि सुबह सुबह सारे के सारे सर्वेंट्स ने कहा कि बस अब हम तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकते, अगर तुम इस अमेरिकन सोल्जर को घर में रखोगे तो हम नहीं रहेंगे. ऑल टुगेदर यानी कि सारे के सारे वहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए. देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वेयर कॉटन कर्चीफ्स. और ये आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि वो जैसे एक बड़ी सी चादर लेते हैं, उसके अंदर सारे कपड़े अपने रख के उस चादर को बांध के इस तरीके से उन्होंने अपना सामान जो था वो पैक कर लिया. When Hannah got up in the morning, nothing was done. जब सुबह हैना उठी तो कोई भी घर का काम नहीं हुआ था. The house was not cleaned and the food not prepared, and she knew what it meant. और हैना को समझ में आ गया कि इसका क्या मतलब हो सकता है कि इन्होंने कोई भी काम नहीं किया. She was dismayed and even terrified. वो दुखी भी थी और डरी हुई भी थी. But her pride as a mistress would not allow her to show it. लेकिन भाई वो घर की मालकिन है, वो कैसे गिड़गिड़ा सकती है नौकरों के सामने, कैसे उनको कह सकती है प्लीज़ प्लीज़ डोंट गो. तो एज अ मिस्ट्रेस उसकी जो प्राइड थी वो शो करने के लिए उसे अलाउ नहीं कर रही थी. Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her kitchen, and she paid them off and thanked them for all that they had done for her. अब वो क्या करती है, उनकी सारी पेमेंट कर देती है, उनको सारे उनका जो भी ड्यूज़ है वो पैसे दे देती है, और उनको थैंक यू बोलती है कि आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया. दे वर क्राइंग बट शी डिडंट क्राई. जो सर्वेंट्स थे वो इमोशनल हो गए क्योंकि काफ़ी पुराने सर्वेंट्स थे उनके, बट शी डिडंट क्राई.
The cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house, and Yumi cried because of the children. She was so grieving that after she had gone, she ran back to Henna. अब आप ये सीन समझो कि जो यूमी थी वो बच्चों से बहुत कनेक्टेड थी, तो जैसे ही वो जाती है वो वापस हैना के साइड वापस आती है. इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच, और क्या कहती है, अगर बेबी मुझे बहुत मिस करता है, सेंड फॉर मी, प्लीज़ मुझे बुलावा भेज देना. आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़, मैं अपने पुराने घर जा रही हूँ और आपको पता है कि मेरा पुराना घर कहाँ है. थैंक यू, हैना सेड स्माइलिंग, बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हावेवर द बेबी क्राइड. वैसे तो वो उसको थैंक यू बोलती है, लेकिन वो इंटरनल सोचती है चाहे बेबी कितना भी रोए, मैं तुझे तो वापस नहीं बुलाने वाली हूँ. She made the breakfast and Sadao helped with the children. Neither of them spoke of the servants beyond the fact they were gone. अब दोनों ने ही इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की बेटा. हैना जो थी वो अपने काम में लग गई. But after Hannah had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadao. अब वो prisoner को morning food देकर वापस आती है डॉक्टर सदाव के पास. Why is it we can't see clearly what we ought to do? She asked him. और वो डॉक्टर सदाव से कहती है ऐसा क्यों, हम कंफ्यूज क्यों हैं, हम कोई डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं. Even the servants see more clearly than we do. Why are we different from other Japanese? और वो डॉक्टर सदाव से कहती है इवन हमारे सर्वेंट्स को भी पता है कि उनको क्या करना है, हम बाकी जैपनीज़ की तरह क्यों नहीं बिहेव कर सकते, क्यों नहीं कर रहे हम ऐसे बिहेव. Sadao didn't answer, but a little later he went into the room where the prisoner was and said briskly, फटाफट से, जल्दी से बोलना. वो उसको तो जवाब नहीं देता है ना को, क्योंकि वो उसके पास खुद के पास ही जवाब नहीं है बेटा कि अब हम करें क्या. तो वो जाता है उस प्रिजनर के रूम में और उसे बहुत रूडली ब्रिस्कली कहता है, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आज तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे. आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 minutes एट अ टाइम, और मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार में सिर्फ 5 मिनट के लिए खड़े हो, इससे ज़्यादा नहीं. टुमारो यू मे ट्राई ट्वाइस एज लॉन्ग, और कल तुम इससे डबल टाइम खड़े हो सकते हो, यानी कि 10 मिनट्स खड़े हो सकते हो. इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, और तुम्हारे लिए यही ठीक रहेगा कि तुम कितनी जल्दी से जल्दी अपनी जो स्ट्रेंथ है वो वापस गेन करो. क्यों? क्योंकि भाई वो एक बहुत बड़ी हेडेक है डॉक्टर सदाव के लिए, और डॉक्टर सदाव इस टेंशन को, इस स्ट्रेस को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता. He saw the flicker of terror on the young man's face that was still very pale. अब एकदम से जब वो इस तरीके से बात कर रहा था तो एक टेरर उस यंग फेस, जो पीला पड़ा हुआ चेहरा है, जो अभी भी मतलब इतने अच्छे से रिकवर नहीं किया है जिसने, उस पर एक टेरर उसे नज़र आया. ओके, द बॉय मर्मर्ड, बॉय धीरे से कहता है ओके डॉक्टर. एविडेंटली ही वॉज डिटर्मिन टू से मोर, वो कुछ और कहना चाहता था डॉक्टर सदाव को. आई फील आई ought टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, और वो क्या कहता है, डॉक्टर मुझे लगता है कि मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने मेरी जान बचाई. डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाव सैड कोल्डली रफली. कहते इतनी जल्दी भी मुझे थैंक यू मत बोलो. क्यों थैंक यू क्यों ना बोलो इतनी जल्दी? क्योंकि अभी उसको नहीं पता उसके साथ क्या होने वाला है. अभी सिर्फ उसकी जान बची है, लेकिन वो अपनी कंट्री में अपने लोगों के बीच में नहीं है. ही सो द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज़ आइज, और जब डॉक्टर सदाव ने ये कहा तो वो इंसान फिर डर गया. टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, और ऐसे जैसे कोई जानवर डर जाता है किसी को देख के, इस तरीके से डर गया. द स्कार ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट. क्रिम्सन इज डार्क रेड कलर, और जो उसके गले पे निशान था वो दोबारा से रेड हो गया. दो स्कार्स वट वर दे, सदाव डिडंट आस्क. सदाव पूछना तो चाहता था कि ये स्कार्स किस चीज़ के हैं, लेकिन वो पूछता नहीं है. आपको याद है ना, पहले एक बार हैना भी जब याद कर रही होती है कि किस तरीके से उसने उसको टॉर्चर की स्टोरीज़ वो सब याद कर रही होती है, तो वो पूछना चाहती है लेकिन वो पूछती नहीं है. Student, let's stop here. We'll continue in our next video lecture.